जिंदगी शतरंज सी है, तुम अपना दाव रखो। मात हर कदम पर है, जरा संभल कर पाव रखो। नमस्कार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर पूजा शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूं। I stand before you today in a sense of hope and enthusiasm as we embark on a journey to discuss the vision of building New India. It is an honor to be here on this esteemed talk, where we have the opportunity to engage in a dialogue with Dr. Ram Madhav, who shapes and molds the young minds of India through his organization, India Foundation, which will help in building a great nation. We are holding Shatranj 6th time with this year's theme, Building a New India, Innovation and Creativity as Benchmarks, which in today's world tries to give clear idea of foreign policy and international relations and its impact on business and economy. This talk itself suggests that how various national and international events leave an indelible print on our national character, pride, and integrity. It is an honor and privilege to have Dr. Ram Madhav in person among us. India, a land of diversity and resilience. It has always been a beacon of hope and inspiration for the world. From the ancient civilization that flourished on this soil to the struggle for independence, our nation has overcome countless challenges. In the initial stages, the challenges were too many. From politics to social life, Indians have witnessed significant changes in their lives. India faced challenges from neighboring countries, militants, separatists, Naxals, and regionalism. India is an eternally young country with highly productive, aspiring, innovative, and creative people. They should be given the right direction. As we stand at a threshold of a new era, we find ourselves at pivotal moment in our history. The time has come for us to collectively envision and build a new India. A nation that is not defined by the burdens of the past, but rather one that embraces its true potential. A new India is more than just an idea. It is a promise we make to ourselves and to future generations. It is a promise of inclusive growth, where every citizen, regardless of their background, has equal opportunities to succeed and thrive. A new India is a vision of sustainable development, where we harness the power of technology, creativity, and innovation. However, the task of building a new India is a collective responsibility of each one of us and has a role to play in shaping the destiny of our nation. I invite you all to join me on this talk as we delve into the ideas, challenges, and opportunities that lie ahead. Together, let us shape the narrative of New India. विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए. So let the journey begin.
भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर के स्मरण से किया जाता है। मैं हमारे गणमान्य अतिथि डॉक्टर राम माधव जी, डॉक्टर जिगर इनामदार जी और हमारी डीन डॉक्टर शेफाली दानी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। तो हम सभी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं ताकि वे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योतिम परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। Jack Welch said, and I quote, "Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others." Unquote. With these lines, I would like to invite on the stage the person who holds the college together, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge, a visionary who channelizes all our energy in the right directions, an epitome of positivity, compassionate and multitasker, the one and only, our very own Dr. Shefali Dani, Dean Faculty of Business Administration, to give her welcome speech. Thank you, Pooja. Good morning, all the students. Are you excited? Yes, this is the spirit of GLS students. Good morning, all of you. Respected Shri Ram Madhav ji, Mr. Jigar, my colleagues at GLS University, my faculty members, Dr. Jokhi, and dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all at Faculty of Business Administration's annual talk show, Shatranj. Let me introduce about the university. GLS University is a young university started in 2015, and we are affiliated with Gujarat Law Society. The society, which was established in 1927 by Shri Sardar Vallabhbhai Patel, Shri Ganesh Mavlankar, and Shri Kasturbai Lalbhai. So, as far as Gujarat Law Society is concerned, we are a 9-decade-old trust, and we are able to organize this type of function at such a large scale only because we do have the legacy which is called as Gujarat Law Society. And after establishment of Gujarat Law Society, Shri I.M. Nanavati sir, and after that, Shri Sudhir Nanavati sir, who is the president of GLS University, has established, and because of his visionary leadership only, today we do have more than 15,000 students who are studying at GLS University. Shatranj, or the game of chess, is India's gift to the world. This game teaches strategy, critical thinking, patience, and executive functioning. It gives a player the freedom to choose between several possibilities, but each possibility will entail a series of unavoidable consequences, so that necessity increasingly limits free choice. What is true for this game is also true for world politics. You might have a question as to why we are talking about world politics in the orientation of BBA students. Well, business is a global phenomena, and it cannot remain aloof from whatever is happening in the world politics. China's zero-COVID policy disrupted global chain of supply, but it came as a blessing and disguise to Indian industry. Made in India goods started supplanting Chinese goods in the world market. Several MNCs have shifted their operations from China to India. So what has changed in India? Why India is the most sought country? Why American president wants the autograph of Indian Prime Minister? Why Russian president wants to emulate Make in India policy?
India is an ancient country with thousands of years of history. So what is the new thing that has happened in India which lures world politicians and businessmen alike? To understand that change in India, we have with us Sri Ram Madhavan, an eminent social leader, author and thinker who also happens to be a politician as well. His stint as a General Secretary of a political party in Jammu and Kashmir, Assam and other northeastern states of India makes him an authority to comment on what is happening within country. And his expertise on geopolitical is evident from the fact that he has authored books like Because India Comes First, Reflections on Nationalism, Identity and Culture, Uneasy Neighbors, India and China after 50 years of the war, and Partition Freedom. We are indeed privileged to have such an eminent personality as the speaker of our talk show Shatranj. On behalf of Faculty of Business Administration, GLS University, I warmly extend my welcome to sir. Thank you so much for accepting our invitation. I am sure your well thought out discourse on building a new India, innovation and creativity as benchmarks will ignite the young minds present here. I welcome Jigar Bhai also, who has accompanied. Thank you sir for coming. Before I sign off, once again I express my gratitude towards students for turning up in a huge number to make this event a grand success. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Dr. Ram Madhav is an Indian politician, social leader, author and thinker. Dr. Madhav is the president of India Foundation, a New Delhi-based think tank. In over a decade of India Foundation's existence, Dr. Madhav has been the curator of major annual global and national multilateral initiatives like the Indian Ocean Conference, the Dharma Dham Conference, Asian India Youth Summit, and Counter-Terrorism Conference involving heads of nations and leaders of governments besides academics, scholars, and public-spirited individuals. Most recently, Dr. Madhav has been instrumental in ideating the Religion 20 Forum as a part of India's presidency of the G20. Previously, Dr. Madhav has served as the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party during 2014 to 2020, responsible for handling the political affairs of Jammu and Kashmir, Assam and other northeastern state of India. A renowned author and thinker, Dr. Madhav has over 300 publications to his credit. He has authored several books in English and Telugu. His most recent book, Partition Freedom, explores the untold history of India's partition in 1947 and the birth of Pakistan. He is a regular contributor to platforms like the Indian Express, the Hindustan Times, and Open Magazine, amongst others. He had been the editor of Bharatiya Pragna, a monthly magazine in English published by Pragna Bharati, and associate editor of Jagriti, a Telugu weekly. Widely regarded for his contribution in the field of strategic thinking, political philosophy, and India's foreign policy, Dr. Madhav has travelled widely and addressed the forums like Valdai Discussion Club in Russia, R20 Forum in Indonesia, Shangri-La Dialogue in Singapore, Halifax Security Forum in Canada, Sochi Eurasian Integration Forum in Russia, BRICS Political Forum in China, and the World Peace Conference in Thailand. I request Dr. Shefali Dani, Dean Faculty of Business Administration, to welcome Ram sir with token of love.
We have with us Dr. Jigar Inamdar, Consultant cum Regional Director, ICCR, Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs, Government of India, coordinating activities of Gujarat State Youth Board, Government of Gujarat Senate and Syndicate member, MS University, Baroda. I would now request Dr. Shrida Shah to welcome Jigar sir with token of love. Now, I would invite Dr. Ram Madhav, whose name is a combination of two great deities, Shri Ram and Shri Krishna, representing idealism and diplomacy. जहाँ श्री राम हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं और श्री कृष्ण बताते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आइए अब हम सब श्री राम माधव जी के विचारों को सुने, समझें, उस पर चर्चा विचारना करें और अपने जीवन में उतारें। सर, थैंक यू पूजा जी, डॉक्टर शफाली जी, ऑल योर कोलीग्स एंड माय डियर यंग फ्रेंड्स. Let me at the very outset thank the management, the dean and all her colleagues for giving me this very valuable opportunity to address you all. Addressing students is not new to me, but I am really thrilled to be here because this university has a very distinguished history. It was started by great leaders of our freedom movement like Sardar Patel. It has that great inheritance. I am honored to be here to share the dais with you all today in this prestigious university. I have two difficulties though. One is I cannot speak to you in your sweet mother tongue Gujarati. Sweet because I know you put sweet in everything, including dal and sambar. My mother tongue is also sweet, although we don't put much sweet, we put lot of masala. I am from Andhra Pradesh. My mother tongue is Telugu. It's also sweet, not in that real sense. Food is spicy, but language is sweet. But obviously you can't understand. So I asked Professor Shefali ji whether I should speak in English. Ma'am said, yes, of course, I know that in India. Do you know something? Which country has the largest population that speaks English? It is America. And do you know which is the second country that speaks English? India. Not because of our greatness. Greatness is of our parents who produce too many people in our country. So, we have the second largest English speaking population. So I'm sure most of you follow English. By the way, Indians were ruled by the British. We all know, हमारे देश के ऊपर राज किए थे अंग्रेज. So they taught us English like very sincere slaves. We learned it so well that we produced excellent English scholars in our country. You know, there used to be a scholar from South India, from Tamil Nadu by name Right Honorable Srinivasa Shastri Iyengar. Srinivasa Shastri ji once went to London. एक बार लंदन गए थे. तो विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन, दोज डेज इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन। तो श्रीनिवास शास्त्री जी चर्चिल से मिलने गए। जब चर्चिल से बात कर रहे थे तो श्रीनिवास शास्त्री को लगा कि चर्चिल का अंग्रेजी का ग्रामर गलत है। शास्त्री जी वॉज ए स्कॉलर, स्कॉलर्स आर सेल्डम अफ्रेड ऑफ एनीबडी। सो शास्त्री जी ने बोला चर्चिल को कि मिस्टर चर्चिल, योर इंग्लिश इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। नाउ चर्चिल वाज टेकन अबैक। भाई इनको अंग्रेजी हमने सिखाया और इनको ऊपर हम राज भी कर रहे हैं, और ये आके मुझे कह रहा है कि तुम्हारा अंग्रेजी गलत है। बट चर्चिल वॉज ए स्टेट्समैन, गुस्सा नहीं आया। आजकल तो नेता को गुस्सा आता है आप पॉइंट आउट करोगे तो। बट चर्चिल डिड नॉट गेट एंग्री। He only told Mr. Shastri that, Mr. Shastri, what we Englishmen speak is English. The grammar just follows. वो पीछे पीछे आता है, उसकी चिंता मत करो। तो उस दृष्टि से हम सब एक्सपर्ट हैं। हमारा ग्रामर का अगर नहीं पूछेंगे तो हम सब अंग्रेजी बोलते हैं। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, लेट मी ट्राई दिस न्यू लैंग्वेज ऑफ टीवी टेलीविजन कॉल्ड इंग्लिश। वो हिंदी अंग्रेजी का मिक्सचर होता है। आप हिंदी चैनल में हिंदी नहीं सुनते, इंग्लिश सुनते हैं। तो थोड़ी देर मैं जो भी मेरे विचार आपके सामने रखना है इंग्लिश में रखता हूं। तो मेरा पहला डिफिकल्टी लैंग्वेज को लेकर थी। बट द सेकेंड डिफिकल्टी इज यू ऑल। आपका जो एज है इसके बारे में कहते हैं, उठाएंगे तो गोद में नहीं रहते हैं, उतारेंगे तो जमीन पे नहीं रहते हैं। दिस इज द एज वेयर यू आर वेरी वेरी एक्टिव, यू डोंट वांट टू सिट एंड लिसन टू लॉन्ग लेक्चर्स। तो इट इज अ बिग चैलेंज टू टैकल और हैंडल सच एन ऑडियंस, बट आई एम श्योर यू आर ऑल गुड पीपल. You will have the patience to listen to me for some time, and afterwards I am told I have to be at your mercy also. आप मुझे क्वेश्चन भी करेंगे ऐसा बताया गया था. तो you know our country has two very distinct introductions. दो प्रकार का परिचय अपने देश के बारे में है. एक कहते हैं कि बहुत प्राचीन देश है, 5000 साल से पुराना है, we are an ancient nation. But there is a second introduction which is that we are a very young nation. युवा देश है. देखने में दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस है, बट एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. देश अपने इतिहास से, संस्कृति से, सभ्यता से, by civilization, culture, history, it's a very ancient nation spanning more than 5000 years. But we are a very young population. 58% of our people are below 35 years of age. मैं एटर्नली युवा नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो 54 में भी युवा नेता कहा जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं. वो अगर हिसाब लेंगे तो इस देश में 90% लोग युवा ही होंगे. वो युवा नेता को युवा रहने दे एटर्नली, बट हम नॉर्मल गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं. और इस युवा की एक दूसरी पहचान है. देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी यूनिक आइडेंटिटी अबाउट आवर यूथ. कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक शोध हुआ, आज नहीं कई साल पहले. उस शोध में यह प्रस्तापित हुआ कि आईक्यू ऑफ एन एवरेज इंडियन इज हायर देन द आईक्यू ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ एनी अदर रेस. आईक्यू तो आप समझते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धि. ये इंडियन यूथ का दुनिया के सभी अन्य देशों के यूथ से थोड़ा ज्यादा रहता है. वी आर नॉट ओनली यंग, वी आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. ये अलग बात है कि ये इंटेलिजेंस का प्रयोग कहां होता है, वो अलग बात है, वो बड़ा बहस है. बट इंटेलिजेंट तो है. एक बार ऑन ए लाइटर नोट, आई जस्ट वांट टू कीप इट लाइट, नॉट वेरी सीरियस. एक जगह मिल गए एक अमेरिका का युवक, एक चाइना का युवक और एक इंडिया का युवक. एवरीबडी वांटेड टू प्रूव दैट हिज कंट्री वाज ग्रेट. मेरा देश महान है. तो अमेरिका के बंदा ने कहा कि नहीं, चाइना का बंदे ने कहा कि देखो भाई, हमारे देश में हमने 100 फीट खुदाई की है, वी डग अप 100 फीट. तो एक कॉपर वायर मिला. उसका क्या अर्थ है?
चाइना में 100 साल पहले बिजली हुआ करती थी। झूठ था, बट जस्ट टू शो दैट हिज कंट्री वॉज ग्रेट। तो बाजू में अमेरिकन था, उसको पता है कि आज चाइना में 100 साल पहले बिजली थी नहीं, पर वो गप्पा मार रहा है चाइना वाला। तो इनको लगा कि मुझे अमेरिका ग्रेट है प्रूव करना है, तो इसने कहा कि देखो भाई, हमारे अमेरिका में हमने 500 फीट खुदाई की है, 500 फीट। तो एक फाइबर ऑप्टिक केबल मिला। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आजकल टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। एक केबल में 50-60 स्ट्रिंग होते हैं, एक काम करता है। एक टेलीविजन चलाता है, एक इंटरनेट चलाता है, एक फोन चलाता है, एक दूसरा काम करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहते हैं। वेरी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो अमेरिकन ने कहा कि इसका अर्थ क्या है, 500 साल पहले अमेरिका में फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी थी। यह भी तो झूठ है, 500 साल पहले अमेरिका ही थी नहीं, बट अपना देश महान बताना था, इसलिए वो कह रहा था। हमारा बंदा बैठा हुआ था बाजू में, इसको लगा कि यार दोनों तो झूठ बोल रहे हैं। तो इसने सोचा मैं क्या कहानी बताऊं कि मेरा इंडिया ग्रेट है। इनको पता है हमारे पास ना बिजली थी, ना फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, बट बुद्धि है। तो इसने कहा कि देखो भाई, हमारे देश में हमने 1000 फीट खुदाई की है, कुछ नहीं मिला। इसका अर्थ क्या था, 1000 साल पहले इंडिया में वायरलेस हुआ करता था। तो बुद्धि तो हम अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, इंटेलिजेंट है। क्या दिस यूथ with all its energy and all the great intelligence that God has given to us, भगवान पक्षपाती है? क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को संपत्ति दिया, अफ्रीका को नेचुरल रिसोर्सेस दिया, यूरोप को थोड़ा बहुत बिजनेस का एक्यूमेंट दिया, आशिया को मेहनत करने का स्वभाव दिया, पर इंडिया को ये सब दिया। इंडिया में सब है ना, इंडिया में क्या नहीं है? नेचुरल रिसोर्सेस है, इंटेलिजेंट पीपल है, मेहनती लोग है, और कुशलता तो है हमारे अंदर भी, व्यापार हो, बाकी बुद्धि तो है, सब दिया। क्या दिस ग्रेट बून दैट गॉड हैज गिवन टू अस in the form of our youth and our energy and our intelligence, can we build a new India with this? अगर ऐसा करना है, एक नए भारत को खड़ा करना है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या कहां है, इसको पहले समझना पड़ेगा। वी आर यंग, वी आर एनर्जेटिक, वी आर इंटेलिजेंट, बट द प्रॉब्लम इज वी आर वेरी लेथार्जिक। बड़ा आलसी लोग है। यह आलस को भारत को छोड़ना पड़ेगा। देश को न्यू इंडिया बनाना है तो किसका काम है? हम यूनानिमसली कहेंगे नरेंद्र मोदी का काम है, हमारा नहीं है। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे ना, उन दिनों में यूज्ड टू गिव ए स्पीच इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। नए दिनों में वो भाषण देते थे कि देखो भाई, अब हम आजाद हो गए, वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट नाउ। तो पहले जब आजादी के लिए लड़ रहे थे, हम जेल में जाना पड़ता था, लाठी खाना पड़ता था, कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ता था। पीपल वर सेंट टू गैलोस। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये बलिदान दिए थे, अपना प्राण न्योछावर कर दिए थे देश के लिए। नेहरू जी कहते थे कि देखो भाई, अब आजादी मिल गई ना, आगे ये सब नहीं करना नहीं पड़ेगा, ना जेल जाना पड़ेगा, ना लाठी खाना पड़ेगा, बलिदान तो जरूरत ही नहीं है। तो हम अभी संविधान है, संविधान में आपको कुछ अधिकार देंगे, ये अधिकार लेकर आप अपना जीवन चलाओ, शांति से आनंद से रहो। नेहरू जी का उद्देश्य ये इतना ही था कि चलो भाई, इतने साल संघर्ष किया, 200 इयर्स का हमने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किया, फाइनली वी सिक्योर्ड इंडिपेंडेंस, नाउ लेट पीपल एंजॉय दिस लाइफ ऑफ अ फ्री इंडिया, लाइफ इन ए फ्री इंडिया। हमको दूसरा समझ में आया, हमको लगा अच्छा, अब नेहरू जी का कहने का यह अर्थ है, आगे हमको देश के बारे में सोचना नहीं है, यह काम मिनिस्टर्स का है, एमएलएस का है, मिलिट्री वालों का है। बाहर से प्रॉब्लम है, मिलिट्री देखेगा, अंदर से है तो एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर देखेगा। हमारा काम हमारा अधिकारों के लिए जीवन जीना है, लड़ना है।
एक दिन एक शहर में एक जुलूस चल रहा था मजदूरों का, वर्कर्स का जुलूस होता है, तो उसमें प्लेकार्ड होता है, उसमें डिमांड्स लिखे रहते हैं, हमका तनख्वाह बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, लिखा रहता है। एक प्लेकार्ड पर लिखा हुआ था, रघुपति राघव राजा राम, पूरा वेतन आधा काम। अब ये डिमांड है, डिमांड हो सकता है, आप डिमांड करते रहो, आनंद का जीवन जीते रहो। फ्रेंड्स, this has actually impacted India's rise in last 75 years. We left the burden of making a great, prosperous, strong, developed India on the shoulders of only our governments. We thought it's not our job. A time has come today when we realize that of course governments have a responsibility. They have to do their part. But it's we all together, we have to build this new India. For doing that, we have to change certain very fundamental habits of ours. First, you have to give up this lethargy. Secondly, we should give up this life called rigmarole. यानी मैं आपको किसी को खड़ा करके पूछ लूं कि क्या प्लान है, तो बोलेंगे क्या प्लान है, बीबीए में एडमिट हो गए हैं तो 3 साल, मैम 3 years और 4 years, दिस इज 3 years, 3 साल बीबीए पढ़ना है, चलो हो गया, तो बाद में क्या करना है, नहीं बाद में एमबीए में एडमिशन लेना है, एमबीए पढ़ना है, चलो एमबीए हो गया, बाद में क्या करना है, एमबीए होने के बाद क्या है, आई हैव टू सर्च फॉर ए जॉब, ओके चलो जॉब मिल गया, बाद में क्या करना है, जॉब मिल गया तो माँ बाप कहेंगे कि शादी करो, तो शादी करना है, चलो शादी भी हो गया, बाद में शादी हो गया तो क्या होगा, 2 बच्चे होंगे, चलो बच्चे भी हो गए, क्या करना है, बच्चे होने के बाद बच्चों को थोड़ा अच्छा शिक्षा देना है, उनको बड़ा बनाना है, उनको भी अच्छा जीवन देना है, इसके लिए और मेहनत करके और कमाना है, चलो वो भी हो गया, बच्चे बड़े भी हो गए, आपने घर भी बनाया, एक गाड़ी भी खरीद लिया, बाद में वो कहेंगे यार साहब वो सब करते करते तो रिटायरमेंट हो ही जाएगा, तो मैं पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं पूछूंगा चलो रिटायरमेंट भी हो गया तो बाद में क्या, तब तो क्या है, तो थोड़ा जीवन शांति से चला है, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके साथ खेले, और उसके बाद क्या, मरना है। When I was a student, we used to be taught the table of weekdays, days का टेबल बताते थे, born on Monday ऐसा शुरू होता था, सोमवार को पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़ा हुआ, शनिवार को मर गया। तो ये सप्ताह में सोमवार से रविवार तक इसने क्या किया, पैदा हुआ, पैदा किया, मर गया। तो मान लीजिए आप अपने घर में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, सामने से कोई गाय ऐसा गया, जाते जाते रुके आपके तरफ देख के, अरे सुबोध जी, यहां कोई सुबोध है तो उनको नहीं कह रहा हूं, जनरली कह रहा हूं, आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है, ऐसा पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, वो भी तो पैदा होता है, वो भी तो पैदा करता है, वो भी तो मरता है। तो आप कह सकते हैं नहीं नहीं हमारे पास बुद्धि है, आपको क्या पता उसको बुद्धि नहीं है, किसी गधे के पीछे खड़ा होकर देखो बुद्धि है कि नहीं पता होगा, एक लात मारेगी, उसको भी है, उसकी अकल उतने स्तर की है, हमारे स्तर की शायद नहीं, पर उसका अपना अकल है, अपना भी समान अकल नहीं है सबका। तो डिफरेंस क्या है, ह्यूमंस आर क्रिएटिव विच एनिमल्स आर नॉट। सो डू यू एवर थिंक दैट इन माई लाइफ आई विल डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग इनोवेटिव। हम न्यूटन की कहानी सुनते हैं ना, न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटेशनल थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित किया, वो हम हाई स्कूल में साइंसेस में पढ़ते हैं, उसको पता नहीं आपको वो कहानी बताया कि नहीं, मेरा साइंस टीचर ने हमारे क्लास में बताया, उसको वो ग्रेविटेशनल थ्योरी न्यूटन को कैसे पता हुआ, वो किसी गार्डन में गया, किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक आवाज आई, किसी चीज नीचे गिरने की आवाज आई, देखा तो एक एप्पल के आर्चर्ड में था, एप्पल प्रोबेबली राइप हो गया, पेड़ से कट के नीचे गिरा था, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, हम भी तो आम के बगीचे में जाते हैं, हमारे सामने गिरे हुए आम भी दिखते हैं, नहीं तो एक पत्थर उठा के गिराते भी है।
जब वो आम गिरता है तो हमारा क्या सोच होता है, माली तो देख नहीं रहा है, उठा के ले जाए। बट न्यूटन ने क्या सोचा, ए एप्पल पेड़ से कट के नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गई। मान लीजिए यू बिकम टीचर्स, और यहां टीचर्स है, इनके क्लास में कोई बच्चा खड़ा होकर यह प्रश्न पूछेगा कि मैम ये आम पेड़ से कट के नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो मैम क्या कहती मालूम, गधे हो क्या, न्यूटन को नहीं पढ़ा है। मानो न्यूटन के कारण गिर रहा है, न्यूटन के कारण नहीं गिर रहा है। बट न्यूटन वॉज द गाय हु थॉट डिफरेंटली, हु डिड नॉट थिंक नॉर्मली। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनोवेशन। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। इंग्लिश में एक शब्द है, एक फ्रेज है, आउट ऑफ द बॉक्स। कैन यू बी आउट ऑफ द बॉक्स? If you are out of the box, you can be an innovator. You can create. Otherwise, you can live. गुजरात के दो लोग हुए काठियावाड़ के, एक का नाम था महात्मा गांधी। कोई कह सकते हैं दूसरा कौन था काठियावाड़ का? मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों हुए थे। Both were, both were liars. Both did their what you call both did their barristership in London. Both acquired the upadhi, the degree of barrister in London. Both returned to India. Ek, namely Jinnah, followed normal course. He became a good lawyer. Then he entered into politics. Then he led his own politics, which resulted in partition of India. That's one story. But here was Gandhi, who, after returning to Mumbai, decided कि मैं वो काला गाउन नहीं पहनूंगा, मैं सफेद धोती पहन के गरीबों के बीच में रहूंगा। पढ़ाई तो दोनों ने समान की है, याद रखना। दोनों एक ही भूमि के थे। इनफैक्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपेंस when Gandhi returned in 1915 to Mumbai. गांधी जी का एक सम्मान का कार्यक्रम हुआ था गुजराती समाज से। मुंबई का गुजराती समाज ऑर्गेनाइज्ड ए फेलिसिटेशन प्रोग्राम फॉर गांधी. They thought that Jinnah was a fellow Gujarati. Jinnah was also from Kathiawad, both hailed from same area. So why not Jinnah preside over? Gandhi was happy. Jinnah came. When Jinnah came and started speaking, Jinnah started speaking in English. क्योंकि जिन्ना अंग्रेज में लंदन में पढ़ के आया, वो दिखाना चाहता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाई अच्छा किया हूं. गांधी जी ने उनको ठोका. गांधी जी ने कहा यार तुम ये है सामने गुजराती लोग, तुम गुजराती मैं गुजराती, या तो गुजराती में बोलो, नहीं बोलना है हिंदी में बोलो. तो जिन्ना रेफ्यूज एंड जिन्ना कंटिन्यूड इन इंग्लिश. बट गांधी जी अपना जीवन में भिन्न प्रकार का एक व्यवहार तय किया कि नहीं, मैं सामान्य ऐसे अंग्रेज इंग्लिश रिटर्न लंदन रिटर्न ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं इस जमीन का जीऊंगा. तो वो गांधी जी बने. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स. Innovation, when you talk, when you want to build great countries can be built by people who are out of the box. Can we think out of the box? वैसे तो हमारे कैप्शन में लिखा हुआ है इनोवेशन. ये तो आजकल सब बोलते हैं, ये तो मानो ये सामान्य शब्द हो गया. इनोवेशन, इनोवेटिव, स्टार्टअप इंडस्ट्री, ये बहुत सुनते हैं. इंडिया में रिमेंबर 1.4 मिलियन स्टार्टअप्स आज है. किसी भी स्टार्टअप के पास सोचो सर वी स्टार्टेड ए वेरी इनोवेटिव इंडस्ट्री है. मैं एक बार गया था चेन्नई में एक बंदे के पास, मैंने कहा क्या कर रहे हो? सर वी आर इनटू स्टार्टअप बिग टाइम. मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो वो कहा कि ही इन्वेंटेड ए मशीन दैट कैन क्रिएट प्लेट्स आउट ऑफ द लीव्स. पत्ते का प्लेट बनाने वाला मशीन बनाया. अब ठीक है, वो कुछ नया सोचा, नया बनाया. पत्ते का प्लेट मशीन से बना रहे. नॉर्मली क्या करते हैं हम, वो हाथ से बनाते, इसने एक मशीन बना दिया. बट क्या वो इनोवेशन है? वो क्रिएटिविटी है?
Is it an innovation or is it just imitation? Is it creativity or is it just copying? तो हम आज जिसको इनोवेशन कहते हैं वो भी एक्चुअली इनोवेशन नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो कॉपीइंग है या इमिटेशन है। खराब नहीं है, कम से कम कुछ तो कर रहे हो बेचारा, कुछ तो कर रहा है। वी नीड मेनी सच पीपल हु इंडिजिनाइज, हु कैच अप विद द वेस्ट। उदाहरण के लिए हम आजकल इतने साल 70 इयर्स के बाद थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में वंदे भारत एक्सप्रेस नाम का हाई स्पीड रेल आया। हम सब खुश है, खुश होना चाहिए, कम से कम आज आया है। बट डू यू नो फर्स्ट हाई स्पीड रेल रैन व्हेन? 1987। हमारे यहां 25 साल लगा उसको, 35 साल लगा, कम से कम आज आया। ये ओरिजिनल इनोवेशन नहीं है, बट आया कम से कम वो टेक्नोलॉजी को आज हम भी अपने तरफ से करवा पा रहे हैं। सो वो स्टेज में आज थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट हम आए हैं कि हम एटलीस्ट दुनिया से कैचअप तो करें। पर आपका जब जनरेशन आएगा ना, तब भी कैचअप करते नहीं रहना है, क्रिएट करना है। देन ओनली यू कैन बिल्ड न्यू इंडिया, नहीं तो यू कैन क्रिएट एन अपडेटेड इंडिया। अपडेट करते रहो, अपडेट। जैसे मैं जब कॉलेज में था, देश के इंडिया के बारे में कहते थे इंडिया इज ए पुअर कंट्री, हमको बुरा लगता था। हाँ, इंडिया इज ए बैकवर्ड कंट्री, सॉरी इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा बोलते थे, तो हमको बुरा लगता था। तो कुछ दिन होने के बाद शायद हमारे नेताओं ने कंप्लेंट किया होगा कि यार ये अंडर डेवलप्ड शब्द अच्छा नहीं है, तो हमारे बारे में दुनिया ने बोलने लगा नो नो नो, यू आर नॉट अंडर, यू आर ए डेवलपिंग कंट्री। हम बहुत खुश है, दोनों का अर्थ एक ही है। यू आर एन अंडर डेवलप्ड कहो, यू आर ए डेवलपिंग कंट्री कहो, बात एक ही है। पर हमको अच्छा लगा ये शब्द। रिमेंबर, वी बिकेम ए डेवलपिंग कंट्री इन 1990s, आज भी है डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग ही है, डेवलप नहीं बनना है। डेवलप्ड तभी बनेंगे जब यू हैव दैट इनोवेशन इन इंडिया, नॉट इमिटेशन। यू कैन क्रिएट, नॉट कॉपी। यू नो, आज इंडिया में ड्रोन्स का बड़ा शौक है। शादी, ये हाल में नई मीटिंग नहीं हो रहा, बाहर हो रहा हो तो एक ड्रोन घूम रहा होगा ऊपर, फोटोज लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए। ड्रोन इज ए न्यू फैड इन इंडिया, न्यू फैसिनेशन। डू नो व्हेन वाज द फर्स्ट ड्रोन यूज्ड? 1969। वी आर इन 2023। ये जो ड्रोन हम आज देख रहे हैं ना, 1969 में इसका प्रयोग हो गया था। First military drone was flown in 1979. Do you know by whom? The Israelis. और इजराइल का देश का पूरा पॉपुलेशन आज के दिन में 1 करोड़ है, उन दिनों में 30 लाख 40 लाख पॉपुलेशन था उनका। 30-40 लाख पॉपुलेशन वाला देश 1970s में कैसे सोचा कि ड्रोन चाहिए? वो होता है क्रिएटिविटी। इनोवेशन उससे लिंक होता है। इनोवेशन आप जो हो रहा है उसमें कुछ नया करने से इनोवेशन नहीं होता, वो तो सब लोग करेंगे, आपको भी करना ही है, करेंगे भी आप। बट समथिंग कैन यू क्रिएट, यू नो, आई विल गिव यू वन पजल, प्लीज रिमेंबर दिस, एक्चुअली ए मंत्रा फॉर एवरी यूथ इन दिस कंट्री। कैन यू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट डू नॉट एग्जिस्ट? कैन यू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट हैव नॉट बीन आस्क्ड सो फार? प्रश्न ही आपसे पूछा नहीं है, उसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं ये क्या पागल का प्रश्न है? मैं बताता हूं कैसे पागल का है, 2 उदाहरण देता हूं, बस आपको समझ में आएगा। एक, इजराइल का मैंने नाम लिया तो इजराइल का पहले बताता हूं। इजराइल के चारों ओर बहुत एनिमीज थे उनका, आज भी है, चारों ओर एनिमीज है। तो ये एनिमीज विशेषकर लेबनान से, इजिप्ट से, सीरिया से रैकेट्स भेजते थे। रैकेट्स करके इनके इजराइल के ऊपर रैकेट्स डालते थे, बॉम्ब्स डालते थे। तो आमतौर पर कोई देश क्या करता है, वो रैकेट उड़ा तो रैकेट को कैसे ध्वस्त करना, बीच में ही ध्वस्त करना, ये सोचते हैं ना आमतौर पर। इजराइल ने क्या किया, ये रैकेट जो लॉन्च होता है ना, वो लॉन्चर ही काम नहीं करना है, तो उन्होंने पहले ही वो जो बैटरीज बोलते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च होता है, रैकेट लॉन्च होता है, उस लॉन्चिंग इक्विपमेंट को बैटरी बोलते हैं। वो मिसाइल बैटरीज को जाम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाया,
तो ये बेचारे लोग ऐसे बटन दबाए, ये मिसाइल ऐसे उड़ा, धड़ाल करके उनको ऊपर ही गिरा। क्यों? क्योंकि वो मिसाइल लॉन्चिंग बैटरी को खराब कर दिया। ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग। मैं दूसरा उदाहरण चीन का देता हूं। हमारे मित्र देश नहीं है, हमारा बहुत झगड़ा है, पर कुछ है सोच में। इनफैक्ट आई कैन गिव यू 2 उदाहरण एंड देन मे बी आई विल क्लोज। आई विल बी प्रोबब्ली डूइंग मोर डिस्कशन विथ यू। चीन ने, आप लोग टीवी सिनेमा मूवीज वगैरह में देखे होंगे ना, ग्रेट चाइना वॉल बनाया। यू नो हाउ दैट वॉल वाज बिल्ट? इट टुक क्लोज टू 1500 years to complete that wall. I don't know if anybody had any, among you, anybody had the chance to go to China to see that wall. मैं उस वॉल पे चला था, वॉक किया था। उस वॉल के ऊपर टैंक्स चल सकते हैं, इतना बड़ा, इतना स्टर्डी वॉल बना दिया। क्यों बनाया? चाइना के नॉर्थ में मंचूस मंगोल्स होते थे। मंचू लोग इन मंचूरिया, मंगोल्स इन मंगोलिया होते थे। ये मंचूस एंड मंगोल्स यूज्ड टू इन्वेड चाइना मेनलैंड, उनके ऊपर आक्रमण करते थे। उस आक्रमण से चाइना को बचाने के लिए 3900 किलोमीटर लंबा एक दीवार बना दिया चाइना ने। आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो इंडिया की हिस्ट्री में अलेक्जेंडर से लेकर मुगलों तक जितने आक्रमण हुए, सभी आक्रमण एक माउंटेन पास से हुए हैं। उसका नाम जानते हैं? खैबर पास। एक माउंटेन, उन दिनों में तो जहाज था ही नहीं, विमान थे ही नहीं, तो सब लोग वो माउंटेन पास से आते थे। चारों ओर हिमालयास है, ऊपर में माउंटेन एक पास है जिसको खैबर पास कहते। उस खैबर पास से आते थे, भारत के ऊपर रिपीटेड आक्रमण करते थे। क्या हम ऐसे किसी को लगा कि वहां दीवार बनाना है? बनाने से तो कोई नहीं आ सकता ना। नहीं, हमको लगता नहीं। क्यों? एक तो हम बहुत फिलासफर लोग हैं, वसुदैव कुटुंबकम है ना हमारी फिलॉसफी। हम दीवार कैसे बनाए? हम तो एक ही परिवार है। एक तो एक रोमांटिक नोशन भी होता है हमारे यहां। और हम कम फिलासफर नहीं है। इंडियंस के बारे में मजाक से कहते हैं ना, अकेला रहा बड़ा फिलासफर है। वो इतना भाषण देगा जैसे मैं दे रहा हूं, ऐसा आप भी देंगे। अकेले तो फिलासफर। दूसरा आएगा, आर्गुमेंट होगा दोनों का। तीसरा आएगा, कंफ्यूजन होगा। ये हमारा क्वालिटी है फिलासफर से। दूसरा, द क्रिएटिव थिंकिंग समवेयर वी लेफ्ट बिहाइंड। और दूसरा आखिरी उदाहरण मैं बताता हूं, क्योंकि मैं चीन का नाम लिया। ऑल्दो आई एम नॉट हियर टू रोमांटिसाइज अबाउट चीन। चीन का अपने 10 कमियां है, बट जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी ऑल अबाउट। अमेरिका के पास आकाश में हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, वो स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं ना, इस भवन का, हमारे सबका 1-1 स्क्वायर मीटर का फोटोग्राफ लेके भेजते रहते हैं अमेरिका को, ऊपर से सैटेलाइट से। इतना सैटेलाइट्स अमेरिका का घूमते रहते हैं। चाइना ने सोचा इसका क्या करना है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। तो चाइना ने उसको ध्वस्त करने के लिए दूसरा सैटेलाइट नहीं बनाया, या अमेरिका के ऊपर मैं सैटेलाइट चलाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा। उसने क्या किया? ग्राउंड बेस्ड लेजर्स बनाया, जो लेजर जो भी सैटेलाइट चीन के क्षेत्र में आता है उसको जाम कर देता है। इट्स कॉल्ड कैपेबिलिटी, नॉट पैरिटी। इनके पास 300 सैटेलाइट है, मेरे पास 400 होना, वो नहीं है। इनके पास 300 सैटेलाइट है ना, कोई निकम्मा होंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, मैं जाम कर दूंगा। Why I am giving these examples is youth in this country needs to think differently. We need to produce real innovations. Real creativity is needed. I am not saying those 1,000 people sitting in this hall, all 1,000 will do that, but 10% do it. India, नया इंडिया बनेगा। हम ये नहीं कर पा रहे, इसलिए इंडिया नोबेल लॉरिएट कौन बनता है हमारे यहां? या तो कोई फिलासफर लाइक रविंद्रनाथ ठाकुर बनेगा, या तो कोई सेवा करने वाले सचारदी बनेंगे, कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा। अभी तक नहीं बना है। क्या बन सकते हैं? बन सकते हैं, प्रोवाइडेड थिंक डिफरेंटली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
बी इनोवेटिव, इनोवेटिव भी ऐसा इनोवेटिव कि यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर आंसर्स वेयर नो क्वेश्चंस एग्जिस्ट. That kind of innovative young population is what India looks for. Whether it is business or it is other areas, we need people who think differently. So friends, I will end here with that one point, that be out of the box. Thank you. The youth is hope of our future, with huge potential and has ability to think out of the box. I hope they take the message and will become great thinker, innovators and responsible citizens. Thank you so much, sir, for enlightening us with your thought-provoking words. Now, the house is open for questions, and to moderate the question answer session, I would request Dr. Tejal Jani to join with sir on the stage. Ma'am. Thank you, Pooja ma'am. આ છૂટું કરી આપો ને અને હાથમાં લઈને હા. So, as Pooja ma'am suggested, the house is open for interaction. Before you all ask a question, yes, please, Shubham. Yeah, please. Yeah, please. You can be louder. That is what India needs to not just catch up but get ahead of Western countries. But the question still remains is how? How do we cultivate innovation? Does it start at home, school, college campuses, or is it just inherent? Yes. So, very recently, just a couple of days back, Government of India has announced the formation of what is called National Research Foundation, NRF. NRF का objective ये है कि institutions like this here to promote the culture of research. हमारा problem दो प्रकार का है research में. एक, of course, we need heavy funding for it. We don't have funding. You know, you will be shocked if I tell you the real data. Countries like USA or China, who are leaders in innovation, who are leaders in research, they spend 2 to 2.5% of their GDP on R&D. We spend less than 0.7%. This is private and public R&D मिलाकर कह रहा हूं मैं, केवल सरकार ने, सरकार और प्राइवेट, आपके यहाँ तो इतने फार्मास्यूटिकल कंपनी से वगैरह, ये सब मिलाकर जो स्पेंड करते हैं 0.7% है. अब ये डिसेप्टिव फिगर है, क्यों? ऑफ द जीडीपी मैं कह रहा हूं, चाइना का जीडीपी इंडिया से 5 टाइम्स बिगर है. मतलब चाइना का स्पेंडिंग इंडिया से 20 टाइम्स है R&D पर. अमेरिका का स्पेंडिंग इंडिया से 25 टाइम्स मोर स्पेंडिंग है. अमेरिका $650 बिलियन हर साल खर्च करता है रिसर्च पर, और चाइना $580 बिलियन करता है, हम $15 बिलियन करते हैं. तो मैम, यू हैव टू स्पेंड मोर. So one is funding. So managements have to open up their purses and spend on innovate. If you come up with a, you know, आज भी, because you are BBA students, I am telling you, आज भी इंडिया one area में अच्छा कर रहा है. You know what is that area? Your area, fintech. The financial technologies area में इंडिया आज भी creative है. Our, the digital payments platform called UPI. इंडिया का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, ग्रेटेस्ट इनोवेशन है. इसको आज दुनिया भर के सभी देश फॉलो करना, इमिटेट करना चाहते हैं और कम से कम लेना चाहते हैं भारत से.
फिनटेक में हम कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए प्रकार के हम अनेक इन्वेंशंस कर रहे हैं, बट बाकी साइंस में, अदर एरियाज में हम पीछे है। एक तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सो वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, कहां स्पेंड होगा, ये देखना है, एक बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा, हमारा कल्चर ही खत्म हो गया ना। Do you know in India, out of entire academic world in India, only 1% is engaged in research, 1%. बाकी सब बच्चों को बना रहे, बस स्टूडेंट डिग्रीज दे रहे। We have created कारखानास of degree, है ना, डिग्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये नंबर बढ़ना है ना, अच्छा रिसर्च होने वाले इंस्टीट्यूशंस पर। एक IISc है बेंगलुरु में, साइंस में टॉप एंड रिसर्च करता है। टेल मी, गिव मी अनदर नेम, आप भी नहीं दे पाओगे। तो वी नीड टू एक्चुअली नाउ इंक्रीज दैट काइंड ऑफ कल्चर इन आवर इंस्टीट्यूशंस। सो हियर आल्सो, इन दिस इंस्टीट्यूशन आल्सो, लैब्स शुड कम अप, दोस व्हिच वर्क ऑन इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फिनटेक लैब्स, मैनेजमेंट में लैब्स होना चाहिए। तो उस प्रकार का कल्चर इंडिया में बनाना है, इसलिए NRF का क्रिएशन इसलिए हुआ है। बेटर लेट देन नेवर, कम से कम आज तो शुरू कर रहे हैं। आज हम धीरे धीरे उस कल्चर को बढ़ाएं। कल्चर एंड फंडिंग दो होने से हम अपने प्रतिभा से जरूर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। So related to that, I have another question in mind. What would be the role of education? As we all know that NEP has been launched, but what would be exactly the role? I mean, can there be any blueprint, or if you can set out a vision how education is going to work in realizing the vision of New India? Yes, in fact, NEP has got a great vision. Problem is, वो विजन को कितना हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, प्रश्न वो है ना। NEP is only a policy. NEP is not a program. It's called National Education Policy. There is a policy. उस पॉलिसी के स्पिरिट में आपको प्रोग्राम बनाना है, आप यानी इस इंस्टीट्यूशन को बनाना है, दूसरे इंस्टीट्यूशन को बनाना है। NEP gives that freedom. You know, we talk about multidisciplinary teaching, right? यहाँ टीचर्स है, आपको ये शब्द बहुत परिचित है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग। यानी यह BBA स्टूडेंट है, इनको हिस्ट्री का भी क्लास पढ़ाया जाएगा, एक हिस्ट्री का भी लेसन डालेंगे, एक मॉरल का भी डालेंगे। आज दुनिया में और अपने NEP के अंतर्गत विजन मल्टीडिसिप्लिनरी का नहीं है, ट्रांसडिसिप्लिनरी का है। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी? ट्रांसडिसिप्लिनरी मीन्स आपका BBA का स्टूडेंट, एक फाइनेंशियल स्कैम हुआ, उस स्कैम को लेकर अहमदाबाद के हाईकोर्ट में केस चल रहा है, क्या आपका स्टूडेंट उस केस के हियरिंग में बैठने को परमिशन देंगे? दिस इज कॉल्ड ट्रांसडिसिप्लिनरी। ही विल एक्चुअली गो एंड सिट इन द कोर्ट to understand how financial crimes are committed, not to great experience in committing crimes, but generally to know that how financial institutions have to be developed, how businesses have to outgrow this manipulative technologies, manipulative things. है, हार्वर्ड गिरवर्ड में ये प्रैक्टिस है, यानी आपका लॉयर भी आपका टीचर हो सकता है, या एक फार्मर भी टीचर हो सकता है, बट उनके पास जाने का अनुमति है क्या स्टूडेंट का? हम क्लासरूम से बाहर जाने नहीं देते ना, ज्यादा से ज्यादा एक सेमिनार करते हैं। सो टुडेस अप्रोच इज ट्रांसडिसिप्लिनरी। कैन यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग? हाउ मच कंपोनेंट इज देयर इन आवर कंट्री फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग? एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए जाएगा भी तो ग्रेड्स मिलते हैं क्या उनको? ग्रेड्स नहीं मिलते। तो हमारे एजुकेशन में फंडामेंटली हमको तभी ये माइंडसेट बढ़ाना संभव है जब क्लासरूम टीचिंग से स्टूडेंट को मुक्त करते हैं। टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्लासरूम टीचिंग है, तो सब खुश होंगे, देखो कल से क्लासरूम नहीं आना है। नो, वो अर्थ नहीं है मेरे कहने का। क्या कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस में कोई टीचर जाके बैठ के स्टूडेंट्स के साथ 1 घंटा बिताते हैं? एक फैकल्टी जाके बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। हमने इतना स्ट्रक्चर्ड बना दिया ना एजुकेशन को, इसमें क्रिएटिविटी का स्थान ही नहीं है। यू हैव टू अलाउ स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटिव एंड कमिट 100 मिस्टेक्स, बिकॉज ही विल बी द रियल क्रिएटर
the 101st time, but do you have patience for 100 times mistake? So this is how education has to undergo a big change. This time the new education policy allows for that kind of an innovative way of teaching. It allows, but are you capable of that kind of thing? Capable means I'm not questioning your personal capability. I'm saying, is institution equipped to do that? आपके पास वो equipped है? मैं अभी मैडम से कह रहा था, आजकल वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में एक सिस्टम आया कॉल्ड ब्लॉक टीचिंग. ब्लॉक टीचिंग यानी क्या है? मैंने कहा ना, आपको एक फाइनेंशियल स्कैम को बारे में, आपका हर बीबीए स्टूडेंट को फाइनेंशियल स्कैम्स क्या होते हैं ये मालूम होना है, क्योंकि तभी आप बिजनेस को डेवलप कर पाओगे ना. तो क्या एक स्कैम को डील करने वाला ऑफिसर या एक स्कैमस्टर आपके साथ 4 दिन रहेगा, पूरा 4 दिन आप उसी पर डिस्कस करेंगे? ऐसा संभव है क्या किसी सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में? नहीं है, क्योंकि 10 to 11 एक क्लास है, 11 to 11:15 है, 11:15 to 12:30 दूसरा क्लास है, और 2 अलग अलग सब्जेक्ट है. तो हमें ब्लॉक टीचिंग में जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को. सो दीज काइंड ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आर नाउ अलाउड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP. बट आर वी एक्चुअली कैप्चरिंग दैट? आर NEP को इतना ही हम समझ रहे हैं कि नए नए MBA वालों को भी भगवद गीता सिखा सकते हैं, इसलिए भगवद गीता सिखाएंगे. भगवद गीता तो सीखना है भैया, भगवद गीता सीखना है, बट भगवद गीता से सही अर्थ लेना है. भगवद गीता ये नहीं कहता कि यार तुम अपना प्रयास करो, जो भाई बाकी भगवान देखेगा, वो नहीं है. भगवान उनको ही देखेगा जो नया सोचता है, ये भगवद गीता है. तो इसीलिए हमें थोड़ा NEP का स्पिरिट को लेकर एजुकेशन सिस्टम में काफी रिफॉर्म लाना है. बट आई एम सैड टू से, मैं बहुत जाता हूं, लेटर पे जा रहे हैं हम, NEP का स्पिरिट पे नहीं जा रहे हैं. You need to capture that spirit and enjoy that freedom that NEP is offering to you, especially institutions, private universities like yours. You have enormous freedom today. प्रयोग करना चाहिए. Thank you. Sir, as you said that the fundings are really very important for the startups and the innovation which is really happening in India. But sir, at the same time, government is increasing taxes on the industries which are coming. And now and then, every entrepreneur which is handling a large-scale industry is somehow leaving India. So, sir, what is your take on this? Okay. You are right. I mean, आप जो कह रहे हैं वो सच है कि today we find that some industry, some investor groups, some companies, some industrialists leaving India and going abroad. But many are many are becoming very successful in this country also. क्या है, 7 decades तक स्कैम करना अधिकार बन गया है भारत में कई लोगों का. ने बैंक से पैसे ले लो, चुकाओ मत. तो आज जब सिस्टम टाइट हुआ हो तो किसी किसी को कष्ट लगता है कि हमारे ऊपर टैक्स बहुत हो रहा है. नहीं, टैक्स बहुत नहीं हो रहा है, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है. तो फॉलो करने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा. बट आई टेक इट एज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ इट. द bigger part is about investments. Yes, unfortunately, in fact, his question is very, very interesting. भारत में स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में मैंने कहा ना, मोर देन 1 million स्टार्टअप इंडस्ट्रीज भारत में है. इसमें करीब 120 और 125 बिकेम यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न का अर्थ जानते हैं? यूनिकॉर्न यानी जिसको $1 billion का इन्वेस्टमेंट मिला हो. $1 billion है लगभग 8,000 करोड़. सॉरी, 1 billion is 1,000 to 8,000 crores. तो इतना इन्वेस्टमेंट मिला हो, 800 crores. 1,000 crores इन्वेस्टमेंट मिला हो, ऐसे यूनिकॉर्न्स बोलते हैं उनको. भारत में आउट ऑफ 1 million and so, इतने में से 120-25 ऐसे अच्छे आइडिया का स्टार्टअप से जिसको $1 billion फंडिंग मिला. बट डू यू नो कि ये $1 billion फंडिंग में 90% फंडिंग इज एक्सटर्नल फंडिंग. भारत के अंदर का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बाहर का है. तो हो क्या रहा है, आप फिर भी थोड़ा इनोवेशन के मोड में जाओगे, आप इनोवेट भी करोगे, बेनिफिट किसको हो रहा है? दुबई को हो रहा है, सिंगापुर को हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर वहां का आ रहा है.
इंडिया से अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसका आप कह रहे हो वो आज कम हो रहा है। वेरियस रीजंस है। हम सेफ प्ले करते हैं। इंडिया में जो व्यापारी होता है वो सेफ खेलना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसको आपके बिजनेस में एक टर्म है, रिस्क एवर्शन। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज हाईएस्ट रिस्क एवर्शन फैक्टर। हम रिस्क लेना नहीं चाहते। अब रिस्क ही नहीं लोगे तो बड़ा। आपने जेफ बेजोस का नाम सुना है? जेफ बेजोस कौन है? आप है ना? अमेज़न का 2005, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, 2004 या 2005 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। रिमेंबर इन 2004-5 अमेज़न वाज लाइक हमारा जो रिटेल दुकान होता है ना, उस प्रकार का दुकान था वो। आज भी रिटेल दुकान है, आज भी वो रिटेल में ऑनलाइन बेचते हैं, बट दुकान तो रिटेल है आज भी। ही वॉज एन ऑनलाइन रिटेलर इन 2004। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि साहब व्हाट इज योर प्लान? तो उसने कहा, जेफ बेजोस ने कहा कि मुझे लोगों को स्पेसशिप में बिठा के स्पेस में ले जाना है। दिस वॉज इन 2004। तो जब इसने ये बोला था ना, तो वो जो इंटरव्यूअर था ना, वो बड़ा जोर से हंसा। अरे यार, तुम तो किराना दुकान चला रहे हो और कह रहे हो कि तुम स्पेस में आदमी को ले जाओगे। डू यू नो दैट दिस ईयर ही इज एक्चुअली टेकिंग पीपल इनटू द आउटर स्पेस इन हिज रैकेट, जेफ बेजोस। दो बातें थी इसमें। एक तो उनके पास वो विजन था, मुझे तो किराना दुकान ही नहीं चलाना है, अमेज़न का जीवन में ऐसे ही नहीं रहना है, मुझे टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनना है। बट नंबर 2 है उसके लिए रिस्क लेने की तैयारी। ठीक है ना? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे ना, फेल होंगे ना। इसलिए आप पहले भी कहा ना, 100 बार फेल होने का हिम्मत है क्या? और एक बार से भाग जाते हैं। तो इंडिया में प्रॉब्लम कहां आ रहा है? रिस्क एवर्शन बहुत ज्यादा है कैपिटल को लेकर। हम सेफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो सेफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं मिला ना, तो स्टॉक मार्केट में डालते हैं। स्टॉक उछलता है। स्टॉक तो 60,000 कितना मार्क पहुंच गया? अभी तो बहुत ऊपर चला गया है, 90 क्रॉस कर गया ना। हाँ, 90,000 क्रॉस कर गया है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है हमारा इंडिया का। क्यों? सारा पैसा। You know what is the subscriber base of India Stock Exchange today? 40 करोड़। 40 करोड़ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में एक 50-60 करोड़ फैमिली होते हैं टोटल इंडिया में, उसमें 80% स्टॉक एक्सचेंज में है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो सेफ है ना, वहां डाल दो यार, और कहीं डालोगे तो वापस नहीं आएगा। तो ये रिस्क एवर्शन भी हमारा एक प्रॉब्लम है। हम इंडियंस इससे ऊपर आना पड़ेगा। एक तो टैक्स कंप्लेंट होना पड़ेगा, उसमें कुछ कंप्लेंट्स है, आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट आर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उसको हैंडल करना पड़ेगा, बट उसमें नहीं जाऊंगा। बट रिस्क एवर्शन कम होकर इन्वेस्टमेंट्स में लोग आगे आना इंडियंस को सीखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे इन्वेंशंस भी दुनिया का और लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। बट अदरवाइज योर क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। Jai Hind, sir. Sir, my name is Hari Nair. My question is, sir, आपने जैसे 54 इयर्स का युवा नेता की बात की, जो युवा नहीं है, पर वही युवा नेता अमेरिका में जाके इंडिया का नेगेटिव इमेज दिखा रहा है कि और इंडिया की बुराई करता है, जो 90% फेक होता है एलिगेशंस। तो क्या वो इफेक्ट करता है FDI और जो फॉरेन कंपनी आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने में, क्या वो दिक्कत होती है? ऐसा है, इंडिया का कोई 54 इयर्स का युवा नेता है, तो हमारे पास एक 72 इयर्स का भी युवा नेता है। तो ये जो बीच बीच में दुष्प्रचार चलता है ना, उसको ये 72 इयर्स वाले संभाल लेंगे, चिंता मत करो, बहुत ज्यादा परेशान होने का। आइडियली यस, व्हेन वी गो आउट ऑफ द कंट्री वी शुड नेवर बिलिटिल आवर कंट्री, आइडियली। बट मैंने कहा ना, अगर 50 साल में भी कोई बच्चा रहता है तो बच्चे का भी हरकत करेगा। अब क्या कर सकते हैं आप? कुछ हरकतें होती है, बट कोई उसका इंपैक्ट भारत के निवेश पर
इन्वेस्टमेंट पर वगैरह ना हो, इसकी चिंता आज भी India is a very, very attractive destination for financial, for global investor community. In fact, that is one of the reasons why our stock market is doing so well. You have a lot of foreign institutional investment in India, in various companies, various ways, because India is seen as very bullish today, very successful economy. And I am telling you, we have taken off now. India has taken off as an economic power. Once you take off, you will keep on climbing, keep on growing, keep on going. थोड़ा टेक ऑफ होने तक का ही झंझट है, उसको थोड़ा ठीक से उठाना पड़ता है. उठाने का काम 74 या 72 इयर्स वाला यंग मैन ने कर दिया तो उठ गया तो बढ़ेगा. टेक इट फ्रॉम मी, फ्रॉम 3 to 4 years from now we will be a $5 trillion economy. By 2030, a minimum of $8 trillion economy. The estimate is by 2050 we will be a $26 trillion economy. And this is in spite of 54-year-old young man. तो चिंता मत करो, वो अपना राजनीति करे, बट देश अपना सही नेतृत्व में आगे बढ़ेगा. So can we say that it is because of the cultural revival or shedding of our colonial past? No, the most important thing is what Prime Minister Modi did in last 9 years. The most important, he did so many things, so many great things for the country. The most important thing that he did was to generate enormous self-confidence in all of us. Today every Indian is very confident. नहीं हम भी बड़ा बनेंगे, देश को भी बड़ा बनाएंगे. ये जो कॉन्फिडेंस मोदी जी ने जनरेट किया ना, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है. सो दैट कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस अकेले से काम नहीं होता है. कॉन्फिडेंस के साथ हम क्रिएटिव बनना है, हम मेहनत करना है, रिस्क लेना है. सी अदर क्वालिटीज इफ दे आर ऑल एडेड टुगेदर, इन योर लाइफ टाइम यू विल सी ए ग्रेट इंडिया. इन योर लाइफ टाइम आज भी ग्रेट इंडिया है, बट मैं कह रहा हूं in our lifetime we can see a developed India standing on par, shoulder to shoulder with countries like USA, Europe, China and all those countries. हम लोग जितना आगे डेवलप कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह का यूज कर रहे हैं, इंडिया में कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऐसा भी है जो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लोग टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पा रहे. तो उन लोगों का क्या आगे? नहीं, बिल्कुल. तो हम लोगों का वन ऑफ द मिशंस कुड बी, I mean, when I talked about innovative ways of doing things, one of the missions could be to take care of the underprivileged sections also. There also we can be innovative. So, essentially, there can you use your business acumen, which you probably learned in this college, in this university, or your intelligence to help those communities. I know many youngsters. I know one youngster who graduated from Kharagpur IIT and then he did his business management course, business management course, and what he did and he continues to do is very innovative, very interesting. He reached out to some 10 villages in Bihar, talked to some 350 farmers. He created a collective farming activity. He actually studied the Patna market. What are the things that are in demand in Patna market? Those things that are not available in Bihar but they are coming from outside. Like some products are coming from Uttar Pradesh. Suppose aloo is coming from Uttar Pradesh. What he did was, he gave these farmers training in growing aloo. Now their only job is to just cultivate. Then he is creating a market chain, he creating basic supply chain, and he is making that product available in Patna and other cities in Bihar. And today, those farmers are making 3 times more income, and this guy is also making his money. So, underprivileged sections है, उनके बारे में भी क्या यूज हो सकता है, क्या हम टेक्नोलॉजी और हमारा नॉलेज कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए. टुडे डिजिटल पेमेंट्स, this whole system of digital payment network that we have developed in India has become a very useful tool for our underprivileged people. I come from the state of Andhra Pradesh. When it was united, Andhra Pradesh, the then chief minister announced a scheme of giving 250 rupees every month to the poor families and below BPL रेखा के नीचे के परिवारों को 250 rupees देना है.
बट देना कैसे? क्योंकि ना उनका कोई बैंक अकाउंट, ना कोई और सुविधा। तो क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो तहसील यानी विलेज ऑफिसर्स होते हैं ना, ये विलेज ऑफिसर्स को पैसे भेजते थे। विलेज ऑफिसर का ड्यूटी होता था घर घर में जाके वो पैसे देना। ये बंदा तो कमीशन काटता था और ये बंदा कहता था कि मेरे पास आकर लो पैसा। तो उनको 2000 देना था तो ये 500 का 2 नोट देता था। वो कहता था कि यही है 2000, 2 नोट है, 1-1000 का नोट है। बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतना करप्शन होता था। टुडे इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, पैसे तुम्हारे बैंक में है, तुम्हारे अकाउंट में है। तो दिस इज हाउ यू बेनिफिट द पुअर आल्सो, नो, थ्रू इनोवेशन, through using new technologies, new methods. अभी मुझे पता चला कि एक नगर में आधार को वोटर आईडी से लिंक किया। आधार एंड वोटर आईडी वर लिंक्ड। अचानक 4000 नकली वोटर निकले। वन टेक्नोलॉजी। कितने समय से इंडिया में नकली वोटर है? हमेशा है। बोगस वोटिंग तो हमेशा होता रहा है। बोगस कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो बनता ही रहा है। बट वन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट, लिंकिंग आधार विथ वोटर आईडी, हमने पूरा नकली वोटर को निकाल दिया बाहर। सो टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट लेवलर। यू रिमेंबर, टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट लेवलर। सारे बीमारियों को खत्म करेगा। बट उस टेक्नोलॉजी के बारे में इन्वेस्टिवली सोचो। यू आर एक्चुअली बेनिफिटिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूर आल्सो। यू think on the lines of creating those technologies which benefit poor people of this country. This government is doing enormous work in that direction. Thank you. Sir, in that case, can we suggest that Antyodaya is subsumed in the idea of New India? The idea, the concept of Antyodaya is subsumed in New India. Can we say that? Of course. जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, that is Antyodaya. But in that Antyodaya, what we are doing is, it's not just a political slogan that politicians go and give speeches about it. It's using technology, using innovative methods of benefiting the poor of the country. And the benefits should reach the last man. Then he will stand up on his feet. But वो करते समय भी केवल जीवन भर में सरकार पर डिपेंडेंट होकर जीना नहीं है. One has to stand up on his own feet. That is Stand Up India. You know, government has a program called Stand Up India. What is Stand Up India? Any person in this country, poorest of the poor also, should be able to stand on his or her own feet. So government is there to support you. So we need to use technology to, facilitate this kind of transformation. That is what is Antyodaya. अंत्योदय का अर्थ नहीं है कि गरीब को पैसे देते रहो, गरीब केवल सरकार पर निर्भर होकर एक भिक्षुक का जीवन जिएगा, वो नहीं. But he should stand on his own feet. Thank you. Hello. 12:30. We'll take two. Good afternoon, sir. Sir, as you have previously won assembly elections, so what is your advice for leaders who wish to win audience from the smallest levels like college and so on? I couldn't get you. Shall I repeat? Yes. Yes. Sir, as you have previously won assembly elections, so what is your advice for leaders who want to win audience from the smallest levels like college and so on? Okay. But here. Thank you. So if you want to become a leader in our country, we generally think that you should have a lot of money. पैसे होना चाहिए और थोड़ा रुबाब भी करना चाहिए, दादागिरी भी करना चाहिए. Money power and muscle power used to determine the outcome in elections in India. But it's no longer happening now. Remember, you are all young people. India's average voter is an awakened voter today. वो करेगा नहीं, वो सोचता है. तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पब्लिक में रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, संवेदना रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ द पीपल. यू हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. आजकल तो सब पार्टियां पैसे देते इलेक्शन के टाइम पे, तो एक दूसरे से पूछते. मैं तो कई राज्यों के इलेक्शन हैंडल भी किया था फॉर 6-7 years.
तो हम जासूस लगा के पता करते थे कि वो कितना दे रहा है दूसरा वाला, क्योंकि उसे 100 रुपया ज्यादा दे दे। तो हम सोचते थे कि हम बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हो गए हैं, उससे जासूसी करके पता करके थोड़ा ज्यादा दे रहे, वोट हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो पहले तय कर लिया किसको वोट देना है, पर सबसे जितना ज्यादा ले सकते उतना लेता है, सबसे लेता है। तो इसलिए नॉट मनी, नॉट मसल पावर, बट द रियल सिंसियर हार्ड वर्क is what the electorate in India wants today. But do you have that patience? That's the point. Or you want the shortcut? अब तो पिता के नाम पे, ग्रैंडफादर के नाम पे राजनीति करना है कई लोगों को, मेहनत करना ही नहीं है। पर ऐसे में इस देश में ऐसे भी उदाहरण है जो ग्रासरूट से आए हैं, सामान्य परिवारों से आए हैं, मेहनत से बढ़ते बढ़ते देश के ऊपर तक पहुंच गए, राष्ट्रपति पहुंच गई है एक ट्राइबल महिला। वो ट्राइबल ऐसे में केवल परिचय के लिए कह रहा हूं, वो भारतीय है, वो ट्राइबल ऐसा नहीं है। शी इज एन इंडियन, प्राउड इंडियन। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड that we have an Indian woman from coming from a remote part of our country in Orissa today has risen to become the president of India. But how did it happen? Through sheer hard work, samvedana, sensitivity to the cause of the people, and work hard. So that is going to be the future of Indian politics, not the other things. There are no shortcuts anymore in India. Thank you, sir, for giving this opportunity. I have a question that in 2-3 years, the many big companies like JP Morgan or Elon Musk all want to come in India and want to invest. I read in every day I read in newspaper that this CEO want to invest. India is a big opportunity. So why as the Indians we are not finding this a big opportunity, and as a student how we can get this, participate in this journey, and what steps we should take as a student now? So, please, बैठिए. So you are right that today, as I said earlier, India is a very bullish economy. So many people want to come and invest here. They are actually coming. आपके राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू होने वाला है. माइक्रॉन कंपनी टुगेदर विथ टाटास एंड वेदांता, दे आर गोइंग टू सेट अप द फर्स्ट semiconductor chip manufacturing company in your state now. So they are coming. But if you want that investment na, it won't come cheap. आप कुछ नहीं करो और कहो कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई there are no free lunches in economy. Can you be creative? If you are creative, you get lot of funding. I gave you the example of 127 startups which have become unicorns. है ना, उनको $100 बिलियन आ गया, उनके पास 8,000 करोड़ तक उनको पैसा आ गया. तो यू हैव टू बी क्रिएटिव. आई नो वन कंपनी इन बेंगलुरु. आई एम नॉट ए सेल्समैन दो, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, दैट्स ऑल. आप सोच रहे हैं इस कंपनी के सेल्समैन होंगे, ये नहीं, जनरली फॉर यू टू अंडरस्टैंड. उन्होंने सोचा, वो एक दिन, इनफैक्ट ही टोल्ड मी हिज होल हाउ दैट आइडिया केम टू हिम. ही गॉट मैरिड. मैरिज के बाद हनीमून पे जाते हैं ना, हनीमून पे गया, कश्मीर में गया हनीमून मनाने. तो जब देखा तो कश्मीर में जो इंडियन सोल्जर होता है ना, सोल्जर पीछे पीठ पे इतना बड़ा बस्ता बांध के, है ना, अपना जो इक्विपमेंट है, विंटर ड्रेस है, बाकी शू है, वेपन्स है, सब डाल के ऐसे 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 चढ़ रहा था, क्लाइम कर रहा था. हेवी बैग ऑन हिज बैक. दिस गाय केम बैक and thought, can I do something to reduce the burden of this army man, this soldier? You know what he did? He spent 4 years and invented a digital mule. Mule को आप जानते हैं ना, है ना, छोटी गधा जो सामान उठा के ले जाता है. हम गधे को हम सोचते हैं कि ये धोबी और गधा का संबंध हम सोचते हैं, है ना, धोबी का सामान गधा उठा के ले जाता है सोचते हैं. इसने सोचा, वाई नॉट आई क्रिएट नॉट जस्ट ए लिविंग गधा, वो तो वो क्लाइम भी नहीं कर सकता है ना, मुश्किल है उसको भी. ही क्रिएटेड ए डिजिटल गधा, इट्स कॉल्ड डिजिटल म्यूल. एक्सीलेंट इनोवेशन. उसका आर्मी में टेस्टिंग हुआ. आर्मी वालों ने कहा कि यार ये तो हमारा लाइफ इतना आसान कर देगा. वो डिजिटल म्यूल ऐसा है, इट्स अ डिजिटल म्यूल एंड अ डिजिटल एनिमल लाइक थिंग. इट कैन कैरी अप टू 5 टन्स ऑन इट्स बैक. 5 टन्स. उसके ऊपर 5 टन्स रख दो,
सोल्जर चलता रहेगा, उसके मोबाइल में इसका कंट्रोल रहेगा, सोल्जर के पीछे पीछे चलता रहेगा। सोल्जर जब चाहे तब रोक दो, जब चाहे तब क्लेम कराओ, वो क्लेम कर देगा, ऐसे जाएगा, मड में जाएगा, क्लेम भी करेगा, पिट में जाएगा, ऊपर आ जाएगा with this weight on its back. Do you know? He took 4 years to invent it. 4 months में उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया, 4 months. किसने इन्वेस्ट किया मैं नहीं बताता, इंडिया का ही बंदा ने किया है। क्या है? तो यू हैव टू इन्वेंट ना फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल गेट इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट आ जाए, पैसे आ जाए तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा यूएस में होता है, विदेशों में होता है। आपके पास आइडिया है तो बहुत पैसे आता है। इंडिया में आज भी मैंने कहा ना रिस्क एवर्शन है, तो आइडिया को पैसे नहीं मिलता है। आप आइडिया को एक रूप दो, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाओ, प्रोडक्ट पूरा प्रोड्यूस मत करो, प्रोटोटाइप बनाओ, देन यू विल गेट फंडिंग। फंडिंग इज देयर, बहुत फंडिंग है, बट आर यू रेडी टू इनोवेट? थैंक यू। Before we wind up the session, just last question, sir. What is the relevance of Gandhian philosophy in New India? भाई, the sum and substance of Gandhian philosophy is only one thing. Live for the last man. गांधी से एक बार पूछा गया है, इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में आपका क्या स्वप्न है, क्या सोच है? उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, उनसे पूछा कि भारत बड़ा देश बनना है, महान देश बनना है, तो उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है? हाउ कैन इंडिया बिकम ए ग्रेट कंट्री? तो गांधी का रिप्लाई था, देखो भारत बड़ा देश, 4 गांधी हो जाएंगे। क्योंकि अभी अभी होता है ना देश में, जब थोड़ा हिंसा बढ़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो कुछ लोग, बड़े लोग बोलते हैं यार इंडिया नीड्स ए गांधी अगेन, ऐसा अच्छा लेख लिखते या भाषण में बोलते गांधी और आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। तो गांधी का कहना था भारत 4 गांधी, 8 पटेल, 12 सुभाष चंद्र बोस, एक 20 नेहरू बनने से भारत महान नहीं बनता है। भारत महान तब बनता है इस देश का आखिरी व्यक्ति महान बनना है। You have to make the last man on the street really a good citizen, a happy citizen. Then India will become great. So that is Gandhism. Gandhism को हम 10,000 इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं अलग अलग, बट the essence of it, निचोड़ क्या है? Make the life of the last man good, useful, productive. So all our efforts should be towards that, where the last man is benefited. That makes India great. So गांधीयन फिलॉसफी का हमारे पास क्या है? क्या आप लास्ट मैन के डेवलपमेंट के लिए नया टेक्नोलॉजी सोच सकते हो क्या? नया प्रयास कर सकते हो क्या? तो दैट इज व्हाट इज गांधी, एटलीस्ट फॉर अस इन दिस एज. बाय द वे, गांधी इन हिज एज had great reservations over technology, over industry. He used to say that नहीं, इंडिया को तो अपना कॉटेज इंडस्ट्री पर डिपेंड होना है. उस समय इकोनॉमिक थॉट था, वो आज चाहिए क्या? नहीं, शायद हम वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. दिस कैन बी ए डिफरेंट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, बट कोर प्रिंसिपल गांधी का क्या था? आप जो भी करो, मशीन भी लाओ, तो भी बेनिफिट किसको होना है? लास्ट मैन ऑन द स्ट्रीट. तो वो गांधीज्म है जो इस देश को हमेशा, इस दुनिया को हमेशा चाहिए. Thank you. By the way, one shortcoming मैं कह के बंद कर देता हूं. बताऊं? You don't take otherwise. इतने बड़े हाल में जितने क्वेश्चन है सब लड़कों ने पूछा है, एक लड़की भी नहीं पूछी है. इसका 2 अर्थ होते हैं. इसका 2 अर्थ होते हैं. वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो अच्छे इंक्विजिटिव, इंटेलिजेंट, इंक्विजिटिव लोग हैं, वो पूछते हैं. बट जो नहीं पूछते हैं ना, वो सबसे अच्छे लोग हैं, वो संतुष्ट लोग हैं. दे आर हैप्पी, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, दे हैव नो क्वेश्चंस इन लाइफ. एक ये होता है. दूसरा होता है कि जो बोला ये एक शब्द भी समझ में नहीं आया, तो क्या पूछूं? जो भी हो, लड़कियां भी पूछना चाहिए खड़ा होकर. बट चलो आज नहीं, नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. Just 2 minutes, sir. The honors to propose word of thanks is on me.
esteemed Ram sir, Dr. Jigar, invited guests and students, it is indeed a matter of pleasure for me to propose a vote of thanks on behalf of Faculty of Business Administration, GLS University. Dr. Madhav, your talk was electrifying as usual. It was a wonderful blend of vision, humor, and sarcasm. I'm sure it's going to stir up our students to realize the vision of New India through innovation and creativity. Thank you, Dr. Madhav, for enlightening our students. I thank Dr. Jigar for his gracious presence. I would like to thank all the invited guests who blessed us with their presence. I'm thankful to GLS University for giving us free hand to organize such event. I express my gratitude to our linchpin, Dr. Shefali Dani, for conducting such program. I would like to thank my colleagues for their efforts in organizing an event on this scale, which would otherwise have not been possible. I also thank our team of coordinators and volunteers, without whose strong support an event on this scale would not have been possible. I acknowledge the contribution of all those who have contributed directly or indirectly to make this event a big success. How can I forget our students? If time is money, then today you have spent millions for us. Thanks to all of you for making this event a huge success. I request you all to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा व शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे